Upadhyani, would like to offer my gratitude to the resource person, Professor Indu Pandey Khanduri, on behalf of all the participants and organizing committee for accepting our request for sharing her valuable thoughts. Though all of us are well aware of her academic accomplishments, still I would like to highlight some of her achievements. Professor Indu Pandey Khanduri is a professor at the Department of Philosophy, Hemanti Nandan Bahuguna University, Srinagar, Uttarakhand. She was the former head director, Faculty Development Center, Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teacher and Teaching. She did her PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in 1992. She has 29 years of teaching experience and 34 years of research experience. Her research interest and field of specializations include Western epistemology and metaphysics, ethics, Indian and Western, and applied ethics. 11 students are awarded PhD under her immense guidance, and 2 PhD are still going on. She's been involved in many research projects. She visited many abroad cities for academic presentation, including South Korea, Greece, and Romania. She has many research papers and written many research papers in various national and international levels. She has around 4 books at her name and 7 research papers in international journals, and that of 24 research papers in national journals and 15 chapters in the edited book. I welcome you, ma'am, on the behalf of all the participants. Thank you, Dr. Dhyani, and good evening to all of you. चूंकि पिछली बार आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि the lecture or presentation should be bilingual, so I would start with Hindi. All of you are PhDs, pre-PhD scholar. Yes, madam. अच्छा, Yes, ma'am. ठीक है. आप लोग बताएंगे कि मतलब PhD का फुल फॉर्म या डिफिल का फुल फॉर्म क्या होता है? Any one of you? Doctor of Philosophy. Doctor of Philosophy. Philosophy is associated with the very first research degree, whether it's MPhil or PhD or DPhil. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रिसर्च की बात करेंगे, it cannot go forward without philosophy. What a philosophy is, इसके साथ जो रिसर्च डिग्रीज हैं, इनके साथ फिलॉसफी टर्म क्यों लगा है? क्योंकि सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी लेते हैं, तो डॉक्टर का बहुत साधारण अर्थों में क्या मतलब है कि वो प्रॉब्लम को समझता है, उसकी जड़ को समझता है और उसको सॉल्व करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए या क्योर करने के लिए उसके पास एक दृष्टि होती है जिससे वो आपका ट्रीटमेंट करता है. ये जो दृष्टि होती है, विजन जो होता है, ये फिलॉसफी है. अगर सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिसर्च से इसको रिलेट करना चाहूं, तो जो आपका काम करने का विजन है वो फिलॉसफी है, जो दृष्टिकोण है वो फिलॉसफी है. इसकी जरूरत क्यों है, इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका दृष्टिकोण या विजन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. आपका विजन क्लाउडेड भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है. पहला एग्जांपल मैं लेती हूं, अ ग्लास हाफ फिल्ड वाटर. ग्लास में आधा पानी है. इसको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं कि आधा पानी है और आधा खाली है. जब भी आप रिसर्च करने चलते हैं
तो ये आधा खाली है, इस दृष्टिकोण से बचना चाहिए। चाहे वो कंटेंट हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे टाइम हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो, क्योंकि ये जो आधा खाली वाला एटीट्यूड है, ये रिसर्च के लिए बहुत ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम है, जिसको अगर वेस्टर्न के टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो उसको कहते हैं मिसिंग टाइल्स सिंड्रोम। उसके पीछे भी 2-3 लाइन की एक स्टोरी है कि एक बिजनेस पर्सन ने बहुत अच्छा एक 5 स्टार होटल बनाया और लोगों की साइकी चेक करने के लिए उसने जहां पे उसका स्विमिंग पूल था वहां पे 2-3 टाइल्स छोड़ दिए उसने, और दीवार की जो गंदगी थी वो दिखाई दे रही थी। और बाहर आते समय उसकी सारी फैसिलिटी को एंजॉय करके बाहर निकलते समय एक सर्वे रखा। आउट ऑफ 100, 98% पीपल did not talk about the quality and facility of that hotel, but they talked about the missing tiles. मतलब ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमारी नजर वहीं पे जाती है जहां हमें कमियां दिखती हैं। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दृष्टिकोण है। जब आप रिसर्च में एंटर कर रहे हैं तो इन दोनों विजन को, इन दोनों दृष्टिकोणों को समझना बहुत जरूरी है। और चूंकि आपके रिसर्च के टाइटल में ही पीएचडी है, आपकी डिग्री के टाइटल में फिलॉसफी है, इसलिए फिलॉसफी क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये तो रही पॉजिटिव और नेगेटिव विजन की बात। थोड़ा सा मैं आती हूं कि क्लाउडेड और क्लियर विजन क्या होता है। इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जो कि हमारे दर्शन शास्त्र में एक बड़े सिद्धांत के बैकग्राउंड के रूप में दिया जाता है, तत्वमसी के रूप में। एक बार 10 जो थे शिक्षार्थी कह लीजिए, वो नदी पार कर रहे थे। नदी में अचानक बाढ़ आ गई। किसी तरीके से वो 10 पार करके नदी को चले तो गए, लेकिन वहां पे उनके मन में एक आशंका आई कि हम सब लोग सुरक्षित बाहर निकल आए कि नहीं निकल आए। और उन्होंने एक दूसरे को काउंट करना शुरू किया। एक ने काउंट किया 9, दूसरे ने काउंट किया 9, तीसरे ने काउंट किया 9, और सबने काउंट किया और सबको 9 ही मिले। तो उन्होंने कहा हम तो 10 थे, इसका मतलब एक डूब गया। अब 10 ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे मौत पे रोते हैं लोग उस तरीके से। एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने स्टोरी बताई कि हम 10 लोग थे, हमारा एक साथी जो है वो नदी में डूब गया। जो बाहर से पर्सन आ रहा था उसने कहा कि कहां डूबा है, तुम तो 10 हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो गिन रहे तो हमें 9 आ रहा है। तो उसने ये कहा कि 10 में तुम हो, 10 त्वमसी। तुम अपने आप को काउंट नहीं कर रहे हो, अपने आप को गिन नहीं रहे हो, इसलिए आपको 9 दिखाई पड़ रहे हैं। तत्त्वमसी ये अद्वैत वेदांत का बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस पे मैं गंभीरता से चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि ये जो व्यक्ति जो है, जो बाहर से देख रहा है, जो ये बता पा रहा है कि 10वें व्यक्ति तुम हो, या जो जिसको तुम मिसिंग मान रहे हो वो तुम ही हो, इस तरह की स्पष्ट दृष्टि जो है वो आपको रिसर्च में इसकी जरूरत पड़ती है। और इसीलिए दर्शन जो है वो कभी भी आप शोध के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए एक अपरिहार्य इसकी समझ हो जाती है। क्योंकि अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आपके पास दृष्टि नहीं है, या अगर आपके पास नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो आप किसी भी रिसर्च को कल्याणकारी शोध के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रिसर्चेज तो होती हैं, लेकिन कुछ रिसर्चेज कल्याणकारी होती हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड होती हैं, सोसाइटी के लिए होती हैं, कुछ क्रिएटिव होती हैं, कुछ कंट्रीब्यूटरी होती हैं,
और कुछ इसकी नेगेटिव भी होती है। तो जब आप रिसर्च के लिए टॉपिक चूज करते हो या रिसर्च के एरिया में एंटर करते हो, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये आश्वस्त करना पड़ेगा कि आपका रिसर्च जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। अगर कुछ निगेटिव भी है तो उस निगेटिविटी को कम्बैट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, क्योर करने के लिए हो, और अगर कुछ पॉजिटिव है तो उसको और एनहांस करने के लिए। एक सोशल वेल बीइंग, सोशल इम्प्लीकेशन उसका जरूर होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि जब प्योर साइंसेज में रिसर्च की बात की गई है तो उसमें भी लैब टू लैंड की बात की गई है। जो रिसर्च की जा रही हैं वो जब तक व्यवहारिक धरातल पे नहीं आएंगे उन रिसर्च का कोई मतलब नहीं होगा। रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है कि या तो नॉलेज क्रिएशन होता है, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, या कुछ नया इनोवेशन होता है, या इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्सप्लोरेशन होता है। ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको समझने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास एक स्वस्थ दृष्टिकोण हो। और वो हेल्दी विजन हमें कहां से मिलता है? दर्शन से। अब मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों से ये है, क्योंकि कुछ समय आपका इस प्री पीएचडी कोर्स वर्क में बीत चुका है, तो मैं दूसरा प्रश्न ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई ये बताएगा कि आप लोग दर्शन से समझते क्या? एनीवन? क्योंकि ये लेक्चर स्पेशली शैलेंद्र जी ने मुझसे कहा कि कुछ टर्मिनोलॉजीज को क्लैरिफाई करना है, इसलिए इस लेक्चर की जरूरत है और आप लोगों की तरफ से इसकी डिमांड की गई। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, या दर्शन शास्त्र शब्द से आप क्या समझते हैं? अगर कोई फिलॉसफी का स्टूडेंट हो तो वो कर सकता है, मेरे ख्याल से नहीं होगा फिलॉसफी का, लेकिन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के होंगे तो वो भी इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। Ma'am, if we talk about philosophy, so we can say it's love for knowledge, but another term we can say कि ज्ञान के लिए प्रेम तो दर्शन है, लेकिन हमारे देखने का नजरिया भी कहीं ना कहीं दर्शन को परिभाषित कर सकता है, किसी के देखने का नजरिया। ठीक है, गुड। एनीवन एल्स? नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ, एक दरअसल मैम हमें लगता है कि जैसे किसी सब्जेक्ट, किसी विषय को लेके हमारा दृष्टिकोण क्या है, तो ये दर्शन लगता है हमें। हाँ ठीक है। अशोक जी आप बताइए, कुछ बोल रहे थे। मैम, किसी भी विषय का गूढ़ अध्ययन मैम अपनी एक नई दृष्टि से देखना, ये मैं ये समझता हूँ अपना दर्शन। ये दर्शन है। कोई और रिस्पॉन्ड करना चाहेगा इसमें? हाँ मैम, दर्शन हम देखते हैं और देखने के पश्चात हम क्या अनुभव करते हैं, हमारा नजरिया क्या होता है, वही दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मैम, दर्शन जो शब्द है वो दृश्य धातु से बना हुआ है। कहा जाता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी कि जो जब हम सत्य की खोज करते हैं, किसी चीज को हम अपने अंतर्दृष्टि से देखते हैं, तो वो दर्शन कहा जाता है। ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी का 2 डिवाइस खुला हुआ है, प्लीज आप ऑफ कर दीजिए, आवाज गूंज रही है। किसी, हाँ अब ठीक है। आप लोगों ने संक्षेप में दर्शन की परिभाषा मुझे बताई, जिसमें मुख्य रूप से 2 चीजें आई, 2 शब्द आए, एक तो देखना और दूसरा ज्ञान। एक और शब्द आया प्रेम। दृष्टि, दृष्टिकोण, गूढ़ ज्ञान, ये सब इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जब भी हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे सामने उसको जानने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो वो शब्द क्या है, शब्द की संरचना कैसे हुई है, और जिसको हम कहते हैं शाब्दिक अर्थ या एटिमोलॉजिकल मीनिंग, और दूसरा उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके आधार पे उसकी डेफिनेशन दिए जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मीनिंग। जब हम एटिमोलॉजिकल मीनिंग की बात करते हैं
तो आप लोगों में से किसी ने सही बताया कि ज्ञान के प्रति प्रेम, फिलोसोफिया, ये ग्रीक वर्ड है और फिलो का मतलब लव होता है, सोफिया का मतलब नॉलेज होता है। अब इसको जब भी हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम के बजाय ज्ञान के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, ज्ञान के प्रति एक क्रेविंग, ये सब भी कहा जा सकता था। लेकिन जब हम कहते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम, तो इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपकी इमोटिव और कॉग्निटिव दोनों फैकल्टी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि अगर सही रास्ते पे आप शिद्दत से बढ़ते हैं तो वो रास्ता आपको जल्दी और दुगना रिजल्ट देता है। दर्शन में जब ज्ञान के प्रति प्रेम के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब आप दर्शन पढ़ते हैं तो सत्य के प्रति जो आपकी एक निष्ठा है, सत्य के प्रति जो खोज है, वो आपकी व्यवहारिक वृत्ति है और आप उससे इमोशनली भी जुड़े हुए हैं। ड्राई रेशनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इमोशनली भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वो क्या होता है कि उसमें आपका इमोशन, आपका लॉजिक, आपकी रेशनैलिटी सब कुछ जुड़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान जो है वो हर स्टेप पे डिसाइड करता है कि वो क्या सोचे, कैसे सोचे और क्यों सोचे, या क्या जाने, कैसे जाने और क्यों जाने। ये तो हुई हमारी वेस्टर्न डेफिनेशन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव में आए तो जैसा कि आपने में से पूजा ने ये बताया कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से देखा जाए वही दर्शन है। अब प्रश्न ये उठता है कि देखना क्या है। मैंने अपने पिछले व्याख्यान में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि देखना जो है, इसका एक बहुत सिंपल इम्प्लीकेशन ये होता है कि हम जो आंखों से स्थूल रूप से जो देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले व्याख्यान में मैंने इसको स्पष्ट किया था कि देखने का मतलब देखना, समझना, सुनना, निर्णय करना, किसी चीज के लिए सोच समझ के किसी को समय देना, किसी के प्रतिक्रिया देना, जो भी है, मूल्यांकन है, अन्वेषण है, विश्लेषण है, सब कुछ एक दृष्टिपरक तरीके से, सकारात्मक दृष्टि से अगर किया जाता है तो उसे हम दर्शन कहते हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो 3 प्रश्न दर्शन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं: क्या, क्यों और कैसे। अब आप लोगों का आज का जो टॉपिक है जिसमें आप लोग जानना चाहते हैं वो सत्ता मीमांसा, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की बात करना चाहते हैं। ये जो प्रश्न क्या है, ये पूरी तरीके से तत्व मीमांसा के विषय वस्तु की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। कैसे का प्रश्न जो है वो ज्ञान मीमांसीय परिप्रेक्ष्यों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और क्यों ये नीति मीमांसीय परिप्रेक्ष्यों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आपसे मैं एक ये बता दूं कि जब हम इन तीनों प्रश्नों की बात करते हैं तो ये तीनों प्रश्न देखने में भिन्न लगते हैं, क्या, क्यों और कैसे। लेकिन आप लोगों में से क्या कोई ये बताना चाहेगा कि क्या ये वाकई में अलग अलग है, सेपरेट है, सेगमेंट है, इनका एक दूसरे से कुछ नहीं लेना देना है? एनी वन ऑफ यू? किसी भी चीज के विषय में क्या, क्यों और कैसे अगर हम प्रश्न करते हैं तो क्या ये तीनों प्रश्न नितांत भिन्न है, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, या है? मैम मुझे लगता है कहीं मैम जहाँ तक इंटरकनेक्ट तो करते ही हैं। हाँ, नहीं, एक एक करके बताइए। प्रदीप जी आप बोल रहे हैं, बताइए।
फिर पूजा जी बोल देंगे। लगता है कि जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, जैसे आपने कहा व्हाट वाई, और तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो होते ही है मैम। जब हम एक प्रश्न का हमें एक उत्तर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन देता है दूसरे उत्तर की ओर, आई थिंक। हाँ ठीक है, पूजा आप बताइए। मैम मेरा मानना भी यही है, जैसे हम क्यों प्रश्न खोजते हैं या क्या प्रश्न खोजते हैं, पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि क्या समस्या क्या है। जब हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चलता है कि समस्या क्या है, आखिरकार हम जानना क्या चाह रहे हैं, हम ईश्वर के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम आत्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम ज्ञान या शिक्षा के बारे में ही जानना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसके बाद आता है कैसे, हम कैसे जाने उनको, कौन सा वो साधन होगा या कौन सा वो मार्ग होगा जिससे हम वो सब जान पाएंगे। फिर उसके बाद नीति मतलब या क्यों की बात आती है कि हम इन सबको जानना क्यों चाह रहे हैं, आखिरकार कि क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। मैं यही मैं मानती हूँ। हाँ ठीक है, कोई और कुछ इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेगा, उत्तर देना चाहेगा? मैम वस्तुतः तीनों में एक ही भाव छिपा हुआ है, वो है जिज्ञासा का, कि हम कुछ न कुछ जानना चाह रहे हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जिज्ञासा के भाव की वजह से तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी जी मैम, क्योंकि मूल भाव ये है, लेकिन ये इसलिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए ऐसा होता है कि जब हम सामान्य तरीके से इनकी बात करते हैं व्हाट, हाउ एंड व्हाई की, तो जो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर टेक्निकल डिसिप्लिन या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाहे भले ही वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इनकी समझ स्पष्ट करने के लिए हमें अलग अलग इनको डील करना पड़ता है, इन पे बात करनी पड़ती है। जैसे आप देखिए कि हम व्हाट की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से मैंने कहा कि ये मेटाफिजिक्स के जो प्रश्न है, तत्व मीमांसा के जो प्रश्न है, उनकी तरफ हमें आकर्षित करता है। हाउ की बात करते हैं तो ये ज्ञान मीमांसीय प्रश्नों की तरफ हमें आकर्षित करता है। वाई की बात करते हैं तो ये हमें नीति मीमांसीय प्रश्नों की तरफ बात करता है। तो अलग अलग हम इनको समझ सकते हैं, लेकिन समझने की प्रक्रिया में भी ये तीनों ब्रांचेज कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करती, क्योंकि सपोर्ट किए बिना, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा तत्व मीमांसा की बात की और हमने ये कहा कि जो संपूर्ण सत्ताएं हैं या संपूर्ण सृष्टि है उसका मूल तत्व क्या है। आमतौर पे दर्शन में दो मूल तत्वों की बात की गई है, एक भौतिक तत्व और दूसरा वैचारिक तत्व। तो विचार मूल तत्व है या भौतिक तत्व मूल तत्व है, ये निर्धारित करने के लिए हमें रास्ते अपनाने पड़ते हैं, तर्क देने पड़ते हैं, और जहां हम तर्क देते हैं वहीं पे हम ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में घुस जाते हैं। उस तत्व को हम क्यों जानना चाहते हैं, चाहे वो जिज्ञासा ही शांत करना हो, जहां हम क्यों प्रश्न पूछते हैं, हम नीति मीमांसा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो कोई भी पक्ष हम उठा लें, कहीं ना कहीं से दोनों दूसरे पक्ष उसमें समाहित रखते हैं, क्योंकि नितांत अकेला नहीं हो सकता। लेकिन स्पष्ट समझ के लिए इन सब प्रत्ययों को अलग अलग निर्धारित करना, इनके क्षेत्र और सीमा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो रिसर्च में किस तरीके से एप्लीकेबल हैं ये समझना भी जरूरी हो जाता है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं लेती हूं उसके अल्फाबेट्स के थ्रू उसको समझने की। जैसे आप देखिए फिलॉसफी के जो अल्फाबेट्स हैं, पी, इसको अगर हम नॉलेज के सेंस में या अटेम्प्ट के सेंस में डिस्क्राइब करना चाहें तो एक प्रॉम्प्ट और प्रोफाउंड अटेम्प्ट के रूप में ज्ञान के लिए हम रख सकते हैं। एच को हम रखते हैं तो एक ऑनेस्टी या हम्बल अटेम्प्ट के रूप में रख सकते हैं। आई जो है उसको इंटेलेक्चुअलिटी से डिनोट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअलिटी से हम लॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जब लॉजिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो ये प्योर रेशनल ना रह जाए,
इसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन का ओबीडियंस रहे, एनार्किस्ट ना हो जाए, एक सिस्टम बना रहे। वो सिस्टम कैसा हो, पूरी तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक होने का मतलब कि ये प्योर रेशनैलिटी नहीं है जैसे पहले इंटेलेक्चुअलिटी आया, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। और क्यों ये अटेम्प्ट होना चाहिए? पी से पीस है, एच से हार्मनी है, और वाई से यार्निंग अटेम्प्ट्स है। मतलब अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को लेके चलें, समझने की कोशिश करें, तो आपको फिलॉसफी की स्पिरिट समझ में आ जाएगी। और रिसर्च में किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे अटेम्प्ट्स, हमारे मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे ऑन्टोलॉजिकल कमिटमेंट्स, हमारे जो एपिस्टेमोलॉजिकल टूल्स हैं और जो हमारे मॉरल कमिटमेंट्स हैं, वो किस तरीके से फिलॉसफी के थ्रू रिसर्च में इंजेक्ट होते हैं, ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये तो रहा आपको एक मीनिंग जो मैंने आपको बतानी चाहिए कि इसकी एटिमोलॉजिकल मीनिंग। और अब मैं आती हूं उसके डिस्क्रिप्टिव मीनिंग पे, क्योंकि जब फिलॉसफी के डिस्क्रिप्टिव मीनिंग की बात करते हैं तो एक ग्रीक फिलोसोफर था पाइथागोरस, जिसने सबसे पहले फिलॉसफी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था प्री ग्रीक पीरियड में। दर्शन तो हमारे यहाँ बहुत पहले से है, ऋग्वैदिक काल से है, लेकिन फिलॉसफी की बात जब हम कहें तो ये प्री ग्रीक पीरियड में पाइथागोरस नाम का एक फिलोसोफर था जो मैथमेटिशियन भी था, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और जब उसने इंट्रोड्यूस किया था तो लवर ऑफ नॉलेज के रूप में किया था, लेकिन उसके बाद ये रिसीवर ऑफ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज के रेफरेंस में भी यूज होने लगा। और फिलोसोफर जो है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट हो गई कि जितने भी डिसिप्लिन हो सकते हैं उन डिसिप्लिन में बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से वो इंक्वायरी करे और इन्वेस्टिगेशन करे, और ह्यूमन लाइफ के जितने भी फॉर्म या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सब में एक सेटल्ड इंक्वायरी करके सोसाइटी को उससे एक अंतर्दृष्टि दे। अब ये डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो जो इंडियन पर्सपेक्टिव में हमने दृष्टि की बात की, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, वो कहीं ना कहीं से इसके डिस्क्रिप्टिव मीनिंग में भी आ रहा है। और थोड़ा सा हम उस पे जाएं कि जैसे फिलोसोफिया की भी हमने बात की थी, तो उसका था लव फॉर नॉलेज और विजडम। प्लेटो उस विजडम की शुरुआत जो है वो आश्चर्य से मानता है। फिलॉसफी बिगन्स इन वंडर। और जब आप आश्चर्य से किसी चीज को देखते हैं तो उसमें एक, चूंकि उस समय सब अराजक तरीके से चीजें आपको दिखती हैं, उसमें एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी की और सीरियस एफर्ट की जरूरत पड़ती है। ये सीरियस एफर्ट और सिस्टमैटिक इंक्वायरी जो है, जितने भी आपके संदेह होते हैं, जितने भी आपके उलझाव होते हैं, उनको क्लियर करता है। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ विजडम से हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जब हम विजडम की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से नॉलेज, इंफॉर्मेशन और रैशनैलिटी से भिन्न होता है, जिसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव में विवेक कहते हैं। क्योंकि जब विजडम की बात करते हैं तो विजडम ऐसा है जो हमारे इमोशंस को, हमारे रैशनैलिटी को, जो कि फिलोसोफिया में दोनों था, उनको बैलेंस करके एक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज करे, उसको डायरेक्ट करे और उसको क्रिएट करे। मैंने अपने पिछले व्याख्यान में जिक्र किया था हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, उनके द्वारा दी गई फिलॉसफी के डेफिनेशन की, क्योंकि वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंट थी। और उन्होंने कहा था कि फिलॉसफी जो है एक कंप्लीटली यूनिफाइड नॉलेज है। और जब हम यूनिफाइड नॉलेज या समग्र नॉलेज की बात करते हैं तो वो एक अर्थ में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के ज्ञान से भिन्न हो जाता है कि उसमें टुकड़े टुकड़े में यथार्थ का या रियलिटी का ज्ञान होता है। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो वो ये हो सकता है कि विशिष्ट क्षेत्रों में जो भी ज्ञान होता है, विशिष्ट तरीके से उसको हम विज्ञान कह सकते हैं,
लेकिन उन विज्ञानों के ज्ञान के नीचे या तह में कुछ जो छुपा होता है या जो इम्प्लीकेशंस होता है उसको समझने का प्रयास जो है हम दर्शन में करते हैं। अगर इस तरीके से हम कहें तो दर्शन एक तरीके से सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज हो जाता है। यानी जो नॉलेज हमारे पास विज्ञानों के माध्यम से मिलता है उन ज्ञानों के आधार पे एक समेकित ज्ञान की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। और यहीं पे एक प्रश्न उठता है कि समेकित ज्ञान की व्याख्या को समझने के लिए क्या आप लोगों में से कोई एग्जाम्पल दे सकता है जिसको हम समग्र ज्ञान या जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो सारे ज्ञान के पीछे निर्धारित रहता है? क्या ज्ञान स्थायी हो सकता है या ज्ञान को निरंतर प्रवाहमान होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, उसमें जुड़ते रहना चाहिए, उसमें नवीनता बनी रहनी चाहिए और आगे खोजने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए? ज्ञान का क्या मतलब है? Any one of you? Yes, ma'am. Knowledge should be dynamic. It should not be fixed. It should not be fixed. तो जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं कि ये यूनिफाइड नॉलेज है और अंडरलाइन नॉलेज है, तो इसको हम कैसे वो बना सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? रेशनल नॉलेज को, जो यूनिफाइड नॉलेज है, उसको हम डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, उसको गतिशील? मैम उसमें नए नए तरीके प्रयोग में लाके कि नए नए तरीकों से हम उनको बता रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो और गतिशील होगा, उसको गति प्रदान होगी। ठीक है, ये आपका एक सही तरीका है, लेकिन नए तरीकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैम समय में जैसे जैसे परिवर्तन होता समय अनुसार। बिल्कुल। देखिए, इसको एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी। नवीन की ओर मैम आकर्षण भी अधिक होता है। जो नवीन कोई भी चीज जितनी नई होती है उसकी ओर व्यक्ति का आकर्षण उतना ही अधिक होता है। नहीं, देखिए, आकर्षण की जहां तक हम बात करेंगे फिर हम इमोटिव फैकल्टी पे आ गए, और जब हम रिसर्च में कर रहे हैं तो इमोटिव फैकल्टी जो है, जो हमारे इमोशंस हैं, वो उतने ही इन्वॉल्व होने चाहिए जितने जरूरी हो, रेगुलेटेड, क्योंकि आकर्षण गलत चीज के प्रति भी हो सकता है। लेकिन परिवर्तन जो है या नयापन जो है, ये एक आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां, स्थितियां, यथार्थ और आवश्यकताएं बदलती रहती। इतिहास उठा के देख लीजिए, ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि क्या ऋग्वैदिक काल में जो दर्शन स्थापित किया गया था वो आज के युग में उतना ही प्रासंगिक है? उसके कुछ पक्ष प्रासंगिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ग्रीक पीरियड में जितने सिद्धांत दिए गए थे वो क्या आज उसी तरीके से एप्लीकेबल हैं? इस प्रश्न को सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आप सभी लोग कंप्यूटर यूज करते हैं? यस मैम। कंप्यूटर का सीपीयू होता है? यस जी मैम। मैम। यस मैम। हाँ, उसमें पूरी प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे डिवाइसेस में उसके यूजेस और सॉफ्टवेयर बढ़ने लगे, वैसे वैसे आपको यूपीएस को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ने लगी, नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ने लगी। कभी आप वर्ड फाइल में अगर आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप 99 यूज करते थे, फिर आप 2005 पे गए, 2008 पे गए, 2011 पे गए, 2014 पे गए, 2018 पे गए, अब 2020 भी आ गया। दर्शन की भूमिका भी ठीक इसी तरीके से, दर्शन युगानुकूल परिवर्तनों को स्वीकार करके और युग के अनुरूप दृष्टि देने की कोशिश करता है।
और इसीलिए आप देखिए, चाहे साइंसेस की डिग्री हो, चाहे ह्यूमैनिटीज की डिग्री हो, चाहे लिटरेचर की डिग्री हो, सबके साथ दर्शन जुड़ा हुआ है। जितने भी रियल वर्ल्ड में जितने दिखने वाले हैं, उसके अलावा स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी दर्शन जुड़ा हुआ है। जितने रिलीजियस डायलॉग्स होते हैं, जितने कल्चरल डायलॉग्स होते हैं, जितने हेरिटेज डायलॉग्स होते हैं, उन सब में एक दर्शन जुड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक सिस्टमेटिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और इस तरीके से हम देखें तो फिलॉसफी जो है अपने आप में 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल हो जाती है, इसीलिए उसको रिसर्च के साथ जोड़ा गया है। एक तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत जिज्ञासा को शांत करता है। दूसरा, वो उसके जीवन का जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करता है। और तीसरा, वो उसके प्रोग्रेशन में या उसके डेवलपमेंट करेक्ट डायरेक्शन में हो, उसकी तरफ उसको निर्देशित करता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है वो कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ये एक जब चीजों को स्क्रूटनाइज करता है तो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग की पावर डेवलप करता है। जब चीजों को एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड नॉलेज के रूप में देखने की कोशिश करता है, तो ये एक होलिस्टिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। इंसान की जो ग्रीड है, जो लालच है, या उसकी जो इच्छाएं हैं, जैसे गलत दिशा में, चाहे ज्ञान ही हो, अगर वो गलत दिशा में बढ़ता जाएगा तो उसके लिए नुकसानदेह होगा। उसके लिए वो रोकता है, रेगुलेट करता है और उसमें एक मानवीय दृष्टिकोण का विकास करता है। और इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो इस दृष्टिकोण से दर्शन का एक सामाजिक उपयोग भी होता है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही क्यों ना हो, आप देखिए जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, आजकल नेक और यूजीसी की जो रैंकिंग वाली आती है, एनआईआरएफ की रैंकिंग की आती है, उसमें सबसे पहले वो अगर सब्जेक्ट को भी देखते हैं या इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो वो आपका विजन मांगते हैं कि आपका विजन क्या है। आपने कोई हायर एजुकेशन में आपने ये कोर्स डिजाइन किया, या अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप लेना चाहते हैं, तो आपका विजन क्या है और उस विजन को प्राप्त करने के लिए आपके क्या सिद्धांत होंगे, उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए आपकी क्या विश्वास होंगे, उस विश्वास का कौन सा सत्य आधार होगा। और इस तरीके से जब ये सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस में विजन क्लियर रहता है तो वो कहीं ना कहीं से वो आपके संरक्षा के साथ आपकी श्रेष्ठता को भी इंश्योर करता है और जितनी समस्याएं रहती हैं उससे आपको बाहर निकालता है या उसके लिए एक रास्ता देता है। और इसके पहले कि मैं टर्मिनोलॉजी पे जाऊं, थोड़ा सा दर्शन की प्रकृति की बात में करूं, 2 मिनट मैं लूंगी कि फिलॉसफी जो है वो जितने भी फाउंडेशंस, आधारभूत ज्ञान होते हैं या जितनी भी पूर्व मान्यताएं होती हैं, उन सबको विश्लेषित करके स्क्रूटनाइज करता है। क्योंकि अगर अंधविश्वास से या पूर्वाग्रह से आप आगे बढ़ेंगे तो सही ज्ञान की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा यह है कि फिलॉसफी जो है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक विस्तृत कॉन्सेप्शन के साथ पूरे जगत को या पूरी रियलिटी को समझने की पावर देता है। तीसरी चीज ये है कि जब फिलॉसफी की हम बात करते हैं और क्रिटिकली इवेल्युएट करने की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज को अनक्रिटिकली स्टेज में एक्सेप्ट करने से आपको रोकता है। और अगर ये रोकता है तो ऐसा होता है कि जितनी भी विसंगतियां होती हैं लाइफ की, जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, जितने भी आपके सुपरस्टिशंस होते हैं, प्रेजुडिस होते हैं, आपके जो ब्लाइंड एक्सेप्टेंस होती है थियरीज की और आइडियाज की, और जितनी इरेशनल एटीट्यूड होता है रिसर्च के प्रति, उसको रोकता है। और इसलिए जब इन्वेस्टिगेशन, चौथा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं तो उस इन्वेस्टिगेशन में वो एक सिद्धांत, एक सधी हुई भाषा और एक अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। तो अगर आपका अपने जो कुछ भी आप रिसर्च का टॉपिक लेते हैं उसमें अगर आपका दर्शन, आपका विजन, आपके ज्ञान की दिशा
और आपकी शिद्दत, ये 3-4 चीजें अगर स्वस्थ हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये आप मान लीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये 3 मेन ब्रांच हैं फिलॉसफी के। व्हाट जो है वो मेटाफिजिक्स और 2 एक टर्म और यूज किया है, ऑन्टोलॉजी, इनसे जुड़ा हुआ है। इसके पहले कि मैं मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी दोनों की बात करूं, आप लोगों में से किसी को पता है कि इन दोनों टर्मिनोलॉजी में अंतर क्या है, तत्व मीमांसा और सत्ता मीमांसा में? एनीवन? तत्व या सत्ता? नहीं आता है तो आप ये भी बता दीजिए कि आप इसके बारे में अवेयर नहीं है, बट प्लीज स्पीक आउट। Ma'am, if we talk about metaphysics, so meta it means beyond or after. So we can say metaphysics. It talks about the things that are beyond of this world or beyond of the nature. Yes. What about ontology? Ma'am, it might be nature of exist. It might be related to existence or something. I'm not sure. Oh, no, you are nearer to that. Anyone else? कोई और कुछ कहना चाहता है? मैम, तत्व मीमांसा वास्तविकता एवं अस्तित्व का अध्ययन प्रस्तुत करती है और मेरे ख्याल से सत्ता मीमांसा अंतिम सत्य का अध्ययन करती है कि सत्य एक है या अनेक है, ये यही सत्य है या और भी इसके पीछे सत्य है। मैं श्योर नहीं हूँ बस। नहीं, इतना आप लोगों को जानकारी है, दिस इज सफिशिएंट। क्योंकि देखिए, ऑन्टोलॉजी जो है, अगर मैं एक वर्ड में कहूं, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। जनरली क्या करते हैं कि जब भी हम करते हैं तो मेटाफिजिकल फाउंडेशन या ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशन की बात कर देते हैं, वो टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि ऑन्टोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज द सर्च ऑफ द मेन एलिमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट दिस कॉस्मस। आप समझ रहे हैं, इस सृष्टि की संरचना में जो मूल तत्व है उसकी जो खोज है उसको मेटाफिजिक्स करता है। और आपको हैरानी होगी कि ये टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। तत्व मीमांसा तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन एरिस्टोटल की किताब है, उसके 10 बुक्स हैं, जिसको एथिक्स के नाम से जाना जाता है। उसमें पहला चैप्टर फिजिक्स है, दूसरा चैप्टर मेटाफिजिक्स है। क्योंकि ये माना गया कि जो फिजिक्स है, यानी जो फिजिकल रियलिटी, मटेरियल रियलिटी इस वर्ल्ड में है, उसके बियॉन्ड जो कुछ भी जानने का प्रयास किया जाएगा वो मेटाफिजिक्स होगा। और वहां पे अरिस्टोटल ने इसको एज अ डिसिप्लिन यूज नहीं किया। एज अ डिसिप्लिन इसको 16th-17th सेंचुरी में लाइबनिज जब प्लेटो का एनालिसिस कर रहा था, तो उस समय उल्फ के साथ मिल करके वहां पे मेटाफिजिक्स का यूज किया कि जितना प्री ग्रीक पीरियड में फिजिकल रियलिटी की बात की जा सकती है, उसके कंट्रास्ट में प्लेटो ने मेटाफिजिक्स का टर्म दिया। लेकिन एक मेजर ब्रांच के रूप में ये वस्तुओं का जो स्वरूप है, मूल तत्व है, उसके बारे में ये बात करता है। अगर हम सामान्य भाषा में बात करना चाहें तो जब तत्व मीमांसा की बात करेंगे तो एक सामान्य भाषा में एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान मूल तत्व
के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करे, उसे हम तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स कहेंगे। मूल तत्व जो है वो हमेशा परसेप्टेबल नहीं होगा, उसको आप देख नहीं सकते हैं, वो अंडरलाइन होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि चेयर है, टेबल है, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है, लेकिन मैटर क्या है उसको आप समझ सकते हैं, मैटर के फॉर्म्स को समझ सकते हैं, पंचमहाभूत के रूप में समझ सकते हैं, उसके सॉलिडिटी, उसके एक्सटेंशन, उसके कलर, उसके लंबाई चौड़ाई, उसकी संख्या से आप समझ सकते हैं, लेकिन अपने आप में क्या है इसको आप नहीं समझ सकते। तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, आउटर रिफ्लेक्शन होता है, या जब एग्जिस्टेंसेस के रूप में वो डिस्कस होता है तो उसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि मेटाफिजिक्स हमेशा जो इम्परसेप्टेबल रियलिटी है या मूल तत्व है उसके बारे में बात करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्म ही सत्य है, ये सत्यता उसका गुण हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का मूल तत्व जो है वो ब्रह्म में निहित है, उसी में उत्पन्न होता है, उसी में विकसित होता है और उसी में फिर विलीन हो जाता है माया के थ्रू, तो ये तो हुआ मेटाफिजिक्स। लेकिन जहां हम कहना शुरू कर देते हैं कि ब्रह्म जो है सतचित्त आनंद है, तो यानी ब्रह्म की या ईश्वर की सत्ता की विवेचना करना शुरू कर देते हैं, और यहीं पे ये ऑन्टोलॉजी हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि ये जगत जो है नश्वर है, मनुष्य मरणशील है, तो ये जगत और मनुष्य की नश्वरता और मरणशीलता जो है ये सत्ता मीमांसा हो जाता है, ये मेटाफिजिक्स नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि एक व्यवहारिक मनुष्य जो है वो भूत तत्व और चेतन दोनों का संग्रह है, तो ये उसका तत्व मीमांसा होता है, मेटाफिजिक्स होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, एक इमोशनल प्राणी है, तो यहां पे वो तत्व मीमांसीय ना होकर के सत्ता मीमांसीय विवेचन हो जाता है। और सत्ता की विवेचना जब हम करते हैं तो वो नश्वर जगत में सत्ताओं का भी हो सकता है और सुपर नेचुरल जगत के सत्ताओं का भी हो सकता है, जैसे हम ईश्वर का विवेचन करते हैं या सुपर नेचुरल तत्व का विवेचन करते हैं। हाँ मनीष जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, इसे क्या हम आत्मा और परमात्मा के रूप में भी समझ सकते हैं जैसे कबीर ने समझा है? बिल्कुल, मैं यही कहने जा रही थी कि जब हम सुपर नेचुरल रियलिटी की बात करते हैं तो वो ईश्वर के साथ आत्मा, परमात्मा, ग्रह, नक्षत्र और आपके जितने भी सत्ताएं होती हैं उन सबके बारे में लागू होता है। और आप कह सकते हैं कि चूंकि वो परसेप्टेबल नहीं है तो हम उनके गुणों को कैसे जानेंगे? जो व्याख्यायित किया जाता है उसकी प्रामाणिकता क्या हो सकती है? तो ये प्रश्न और विवाद दर्शन में बना रहता है, लेकिन मूल रूप से शास्त्रों में जो विवेचन दिया गया है, शास्त्रों में जो कहा गया है, उसकी विसंगतियां, उसकी सुसंगतियां खोजते हुए हम उसको मानने और उसको इनकार करने के रास्ते तलाश लेते हैं। तो सत्ता मीमांसा में सत्ताओं की विवेचन होती है, जबकि तत्व मीमांसा में मूल तत्व क्या है इसका विवेचन होता है। और इसीलिए जब आप देखिए कि मेटाफिजिक्स की हम बात करेंगे तो हमारे सामने दो तरह की ही सिद्धांत आते हैं, एक आइडियलिज्म और दूसरा मेटेरियलिज्म। और इन दोनों के बीच में एक सिद्धांत की और बात की जाती है, उसको रियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म का मतलब यह है कि मूल तत्व जो है वो सिर्फ विचार है, सिर्फ चेतनता है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, उसी से समस्त सृष्टि और जितनी भी चीजें हो सकती हैं उसके अस्तित्व की या उसके सत्ता की हम व्याख्या कर सकते हैं। मेटेरियलिज्म का मतलब यह है कि इस संपूर्ण सृष्टि और समस्त सत्ताओं के पीछे जो है वो एक भूत तत्व है, और वो उसके जो भी परिणाम होते हैं, जैसे चार्वाक दर्शन है वो कहता है कि जैसे वो ठीक उसी तरीके से परिवर्तित परिणाम होते हैं, जैसे पान होता है, कत्था होता है, चूना होता है, उसमें से एक लाल रंग बन करके निकलता है,
तो लेकिन सभी मटेरियल चीजें वो दूसरी मटेरियल चीजों को पैदा कर देते हैं। तो इस तरीके से मटेरियलिस्ट ये कहते हैं कि ये जो है मैटर मूल तत्व है, और आइडियलिस्ट कहते हैं कि आइडियाज या विचार जो है वो मूल तत्व है। अब इसमें थोड़ा सा और समझने की बात यह है कि चूंकि आप लोग रिसर्च में जा रहे हो तो मैटेरियलिज्म दो तरह का है। एक तो मैकेनिकल मैटेरियलिज्म है, जिस तरह की चारवाक की बात मैंने की, वो कहता है। दूसरा मैटेरियलिज्म जो है वो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, वो मानता है कि क्वांटिटी क्वालिटी को प्रभावित करता है और क्वालिटी क्वांटिटी को प्रभावित करता है। आप इसको बहुत मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप मार्क्सियन आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, मार्क्स के सिद्धांत पढ़ेंगे तो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसी तरीके से आइडियलिज्म जो है वो दो तरह का होता है। एक सब्जेक्टिव आइडियलिज्म होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म होता है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में ये मानते हैं कि जो इंडिविजुअल माइंड के आइडियाज हैं वो रियलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म में मानते हैं कि जनरल माइंड का जो आइडिया है, या स्पिरिचुअल आइडिया है, या रिलीजियस आइडिया है, या किसी सुपर नेचुरल पावर को हमने मान लिया, उसका जो कॉन्शियसनेस का आइडिया है वो सारी सृष्टि की संरचना करता है। ये दोनों कंट्रास्टिंग हैं, क्योंकि अगर आइडियलिज्म मानेंगे तो वो आइडियाज के थ्रू सारे मटेरियल एग्जिस्टेंसेस की एक्सप्लेनेशन करेगा। अगर आइडियलिज्म मटेरियलिज्म मानेंगे तो वो मटेरियलिज्म के थ्रू आइडियाज या थियरीज का एक सुपर स्ट्रक्चर के रूप में एक्सप्लेनेशन करता है। लेकिन इन दोनों से हट करके जो एक सिद्धांत आता है वो रियलिज्म है। वो इस झगड़े में नहीं पड़ता है कि ये आइडिया है या मैटर है, जो रियलिटी है जैसे है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है। इसमें बहुत सारे थियरीज हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, इतना टाइम नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा बीत गया। लेकिन अगर इस तरीके से ऑन्टोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें ये आता है कि मूल सत्ता जो है या सत्ता का जो वो है वो एक है, दो है या अनेक है। जैसा कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा ब्रह्म एक है, ईश्वर सगुण है, ब्रह्म निर्गुण है, या चेतना एक है। अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो वो सत्ता मीमांसीय दृष्टिकोण से विवेचित की जाती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी में एक बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप रिसर्च के रेफरेंस में इसको मेटाफिजिकल फाउंडेशन देखने की कोशिश करते हैं और उसके ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं, दोनों को मिक्सअप करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल प्रॉब्लम लेते हैं करप्शन की, उसके मेटाफिजिकल ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? मेटाफिजिकल ग्राउंड्स ये हो सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में स्वार्थ और परार्थ दोनों की भावना होती है। स्वार्थ की जब अतिशयता हो जाती है तो वो करप्ट हो जाता है। लेकिन इसके ऑन्टोलॉजिकल रीजंस क्या हो जाते हैं? करप्शन क्यों है? आप कह सकते हैं गरीबी है, आप कह सकते हैं किसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप कह सकते हैं ग्रीड है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर जब इन दोनों चीजों को आप मिला देते हैं, यानी जब सिर्फ ऑन्टोलॉजिकल चीजों को, स्कैटर्ड चीजों को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके पेरिफेरियल जो विशेषताएं हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो आप रूट प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाते। और ये कहीं ना कहीं से हम घालमेल करते हैं, इसलिए हम सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब भी आप रिसर्च की बात करते हैं और उसमें फिलॉसफी की रोल की बात करते हैं, तो मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? जी, सुना है मैंने ये शब्द, लेकिन जिज्ञासा रही है कि इसे जानूं। जैसे आपने रियलिज्म की बात की, उसे हम यथार्थवाद कहते हैं। इसी में एक टर्म और आती है मैम, अति यथार्थवाद, उसको कैसे समझेंगे मैम? नहीं, देखिए यथार्थवाद का कई है। एक रियलिज्म तो मैंने एक आपको रियल बता दिया कि एक जो रियलिटी है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े कि ये मैटर है या आइडियाज।
जो रियलिटी आपके सामने है उस रियलिटी को थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन के साथ आपने मान लिया। एक है रिप्रेजेंटेटिव रियलिटी, जिसमें कुछ थोड़े से पक्ष को लेकर के उसको आपने रिप्रेजेंटेटिव रियलिटी मान ली और सबका उसके बेसिस पे निर्धारण कर लिया। और जो अति यथार्थवाद की आप बात करते हैं कि किसी भी एक सेगमेंट को लेकर के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेसिव तरीके से सब पर इम्पोज कर देना, चाहे वो उसके बारे में प्रासंगिक हो या ना हो, उसको एक्सेसिव रियलिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से लिंग्विस्टिक रियलिज्म है, आपका साइंटिफिक रियलिज्म है, उसके बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं, करीब उसके 15 डिविजन्स। आप नेट पे पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। जी जी, धन्यवाद। तो हाँ, कोई और कुछ पूछना चाहेगा? Yes, ma'am. My question is that how metaphysics is connected with spiritualism. How metaphysics is connected with spiritualism? In Yes, fact, ma'am. if you do pure metaphysics, Yes. it is not at all connected to spiritualism. Okay. But if you do the relative metaphysics, because if you are trying to explore the characteristics of Brahma or any divine power, Yes. and if you ensure that it is only ideas or pure consciousness, so pure consciousness is going to deliberate upon the connection of the particular consciousness with the absolute consciousness. And this is paving the path of spirituality in metaphysics. Okay. But if you are doing pure metaphysics, it is merely divided between matter and ideas. Whatever the reality is, it could be material reality also. Am I clear? So if you do absolute metaphysical study, nothing to do with the spirituality, but if you do the relative metaphysics, focusing on a particular area, it is definitely connecting the particular consciousness with the absolute consciousness, which is the basic hypothesis of yoga philosophy, which is being popular nowadays. Okay. Because ma'am, because if we talk about spiritualism says that real, and when we talk about metaphysics, it also talks about the things that are beyond of the world. You see, the only thing could be similar between two is imperceptibility. Okay. Non-verifiability. Okay. Because in the metaphysical realm, things are transcendental. They are not known through senses, whether it's matter or ideas. Even in the spiritual realm also, they are transcendental. They are not perceptible. Okay. Even if you talk about the mystic experiences in spiritualism, that is not verifiable. That is not repetitive. Am I clear? Yes, ma'am. Now it's clear. Any other question? Any other question, if you have? Otherwise, I will take up epistemology. Because metaphysics and ontology, from my point of view, is complete. If you have got any question, you may proceed. No question. Okay. Then we will take up the term epistemology. Any one of you can define epistemology, what it is? Ma'am, it's a kind of knowledge, theory of knowledge, something just especially related to method something, and it's a difference between beliefs and opinion. In fact, it is exactly the theory of knowledge. Anyone else?
Okay. Epistemology is a systematic way of explaining, defining, devising the means of knowledge and knowing what is the extent of knowledge. The very term comes from the Greek word episteme and logos. Episteme can be translated as knowledge, understanding, acquaintance, and logos can be translated as an account, argument, or reason. These two are account, argument, and reason for knowledge. The second important thing is that knowledge is connected with the belief. Suppose if I say that I know this, it means I am having belief that my knowledge is correct, true. So knowledge also has been defined as a true belief. But certainly it is not opinion. Because opinion of a person can differ from the other. Opinion of a person can be contrasted and opinion of the person can be verified as well. So there is no definite conclusion, there is no certainty, there is no universality, and there is no objectivity. But if knowledge is taken as a true belief, it has got emotive conviction as well as rational satisfaction. But this is not all. Because if we talk about epistemology, it deals with few more questions. And those questions are, what are the main segments of knowledge? Like you see, there could be object of knowledge, there could be subject of knowledge, and there could be sources of knowledge. Object of knowledge is what is known. Subject of knowledge is who is knowing. And sources of knowledge are how the things are being known. But before that, we need to know, can knowledge be of one kind? If truth is one, can knowledge be also of one kind? Anyone of you may respond. क्या ज्ञान एक ही प्रकार का होता है या कई प्रकार के हो सकते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं मैम। जैसे अगर हम विषय को ले लें तो कई विषय हैं। तो जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या साइंस है, साइंस में भी कई प्रकार हैं। जियोलॉजी है, भूगर्भ विज्ञान है और रसायन विज्ञान है, जंतु क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान है। कई तरह के डिसिप्लिन्स हैं और उसमें भी जैसे हम दर्शन शास्त्र देख रहे हैं तो दर्शन शास्त्र में भी कई मीमांसाएं हैं, कई ज्ञान हैं। ज्ञान एक निश्चित परिधि में नहीं हम उसको बांध सकते हैं क्योंकि अनंत की यात्रा। मैंने ये पूछा है कि एक है या अनेक है? अनेक है मैम, अनेक। जब हम ये कहते हैं कि मान लो आई एम गोइंग टू द स्पेकुलेटिव डिस्कशन, हम कहते हैं सत्ता एक है, ब्रह्म एक है जी, तो उसका ज्ञान भी क्या एक ही होगा? मैम क्योंकि जिस तरह से किसी को समझ आए उस तरह की भाषा फिर यूज करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ज्ञान को कई रूपों में प्रदर्शित किया गया है, कई रूपों में, कई तरीके से। जी 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 जी। जैसे मैम जो हम जानते हैं उसी को हम सत्य मानते हैं, या जो हमने नहीं जाना होता उसको हम असत्य कह देते हैं, जबकि हमको पता नहीं होता है कि वो भी सत्य हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न ये है कि हम कैसे जानते हैं कि हमें ज्ञान है या दूसरे को ज्ञान?
मैम, ज्ञान जानने की जहां तक बात है, या किसी विषय से संबंधित अगर हम किसी का ज्ञान जानना चाह रहे हैं, तो हम जितना हमने पढ़ा है हम उतने में ही दूसरे की तुलना करेंगे। अगर उसको हमसे ज्यादा ज्ञान है तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे, तो हमें उसका ही अनुसरण करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम तुलना करेंगे या उसको हम कैसे जानेंगे कि वो हमसे ज्यादा जानता है या हमसे कम जानता है, या हम कैसे किसी को बताएंगे कि हम ये जानते हैं और ये नहीं जानते। मैम जांच कर सकते हैं, जांच करके कि पहचान के। जांच को फिर कैसे बताएंगे? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। फिर हम शास्त्रों की ओर जाएंगे मैम। फिर शास्त्र की बात हम कैसे करेंगे? माध्यम क्या होगा? माध्यम जानने का पढ़ना ही होगा, या फिर हम सुनेंगे। हम पढ़ते हैं किसको? जो लिखा होता है। जी। लिखा कैसे जाता है? वो किसी न किसी भाषा में होता है। लिपि। जी जी जी। भाषा किससे बनती है? वाक्यों से। जी। यानी ज्ञान को अभिव्यक्त करने का जो एक वेहिकल या जो माध्यम हुआ, वो वाक्य हुए। अगर मैं गलत कह रही हूं या आपको इसमें कुछ जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो। मैम भाषा बहुत जरूरी है। जी मैम, भाषा ज्ञान के अगर भाषा से ही रिलेट करते हैं तो कुछ चीज ज्ञान की कुछ चीज शाखाएं ऐसी हैं या कुछ चीज अभी ऐसा है कि जो भाषा में भी हम बांध के नहीं रख सकते ज्ञान को। नहीं, देखिए, हम भाषा में बांध के नहीं रख पाते हैं, लेकिन जिस ज्ञान के हम हस्तांतरण या अंतरक्रिया की बात करते हैं उसके लिए तो भाषा चाहिए। जी जी जी। चाहे वो आपके एक्सप्रेशन का लैंग्वेज हो, चाहे आपके फिजिकल मूवमेंट का लैंग्वेज हो, चाहे आपकी लिपि का लैंग्वेज हो। वो लिपिबद्ध भी हो सकता है और अलिपिबद्ध भी हो सकता है, लेकिन एक भाषा तो चाहिए, एक अभिव्यक्ति तो चाहिए। और अभिव्यक्तियां जो होती हैं वो मूलतः 4 तरह की होती हैं। एक तो डिक्लेरेटिव होती है, जिसमें आप घोषणा कर देते हैं कि नहीं, यही चीज है। दूसरा जो है प्रक्रियागत होता है, प्रोसीजरल होता है, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज ऐसे 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 हुई है। और इसको खास तौर से जितनी भी रहस्यात्मक अनुभूतियां होती हैं ये इसको बहुत यूज करती हैं। तीसरी जो होती है वो कॉन्टेक्चुअल होती है, किसी विषय के संदर्भ में आप बात करते हैं। और चौथी जो होती है एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके की चीजें होती है, जिसके बारे में आप वेरीफाई तो नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप बात कर सकते हैं, जैसे सुपरनेचुरल पावर्स है। और जब इनकी हम बात करते हैं तो आप ये देखिए कि इसी के आधार पे इसमें जो चीजें यूज होती हैं, जो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं या इसके लिए जिन साधनों की हम बात करते हैं, वो 3-4 साधन होते हैं। एक तो हमारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। दूसरा हमारी रेशनल फैकल्टी होती है। तीसरा हमारा इंट्यूशन होता है और चौथा हमारा इमेजिनेशन होता है। ये 4 मूल फैकल्टी हैं जिसके आधार पे हम ज्ञान की बात करते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइंसेस का आप पूरा इतिहास उतार करके देख लीजिए, वो सारे के सारे जो केमिकल होते हैं या जो लैब के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो रिसर्च के एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं, जिसको हम एम्पेरिकल स्टडी कहते हैं। दर्शन में अगर हम इस तरह की बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस, जो 5 सेंसेस से जो हमारे मूल ज्ञान की इंद्रियां हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारे ज्ञान का आधार होता है। यानी ज्ञान का आधार का मतलब यह है कि ज्ञान वहीं से जनरेट होता है, वहीं से डेवलप होता है और वही उसकी सीमा है। तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म, एम्पेरिकल स्टडी।
अनुभववाद। लेकिन उसके अतिरिक्त जो ये मानते हैं कि ज्ञान का प्रारंभ, ये जो 4 सेंटेंसेस बताए, ये हमारी रेशनल कैपेसिटी से शुरू होता है, रीजन से शुरू होता है। हम पहले सोचते हैं फिर हम बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन को जब तक हम रैशनलाइज नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञान के फॉर्म में उसको नहीं ला सकते। तो इनका यह मानना है कि जो हमारी रेशनल कैपेसिटी है, जो रीजन है, उसी से ज्ञान जनरेट होती है, उसी से डेवलप होती है और वही उसकी सीमा निर्धारित करती है। अगर हम इन दोनों को बाइफर्केट करें तो एक जो है उसको हम रैशनलिज्म कहते हैं और दूसरे को हम इम्प्रेसिज्म कहते हैं। इनके बीच का भी एक रास्ता है। इसमें फिलोसोफर हैं, जैसे रैशनलिज्म में अगर वेस्टर्न फिलोसफी में जाओ तो डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज है। इम्प्रेसिज्म में जाओ तो लॉक, बर्कले और ह्यूम है। लेकिन इनके बीच का भी एक रास्ता बनता है जिसको हम कहते हैं रिकंसिलिएटिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज। और जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे सामने इमैनुअल कांट का नाम आता है, जो एक जर्मन फिलोसोफर, जो ये मानता है कि ये दोनों फैकल्टी को हम बाइफर्केट करके नहीं रख सकते हैं। जरा समय 1 मिनट के लिए आप लोगों से माफी चाहूंगी। कोई दरवाजे पे आया, मैं दरवाजा खोल के आती। 1 मिनट के लिए, सॉरी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आवाज आ रही है मेरी साफ? यस मैम। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एक, हाँ, रिकंसिलिएटिंग अप्रोच की बात कर रहे थे, जो वो ये मानते हैं कि रीजन और इम्प्रेसिज्म दोनों जो है, ऑब्जर्वेशन दोनों नॉलेज के लिए जरूरी है। अब ये देखिए कि जब हम इसकी बात करते हैं तो एपिस्टेमोलॉजी सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहता है, वो सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की भी बात करता है। और क्या कंटेंट है सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इस सेंस में कि अगर आप मान लीजिए कि ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञाता कौन है और ज्ञाता का स्ट्रक्चर क्या है। अगर कोई ये मानेगा कि मूल तत्व, जैसे कि मेटाफिजिक्स में मैंने बताया कि वैचारिकी या प्योर कॉन्शियसनेस ही हमारा रियल एलिमेंट है हमारे एग्जिस्टेंस का, तो वो कहीं ना कहीं से रैशनलिज्म की तरफ जाएगा। और अगर इम्प्रेसिज्म को ऑप्ट करेगा तो कोई कंट्राडिक्शन कमिट करेगा। लेकिन एक जनरल नॉलेज की भी बात करते हैं हम देखें तो हमें जो रिकंसिलिएटिंग वाला पोर्शन है वो ज्यादा अपील करता है। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी चीज अगर आप ऑब्जर्वेशन से भी लेते हैं और उसका जनरलाइजेशन करना चलते हैं तो आपको रेशनल फैकल्टी की जरूरत पड़ती है। कोई चीज ऑब्जर्वेशन से अगर आपने ऑब्जर्व किया और उसको देखा तो उसको प्रूव करने के लिए आपको लॉजिक की जरूरत पड़ती है। और इस तरीके से लॉजिक जो है वो अगेन एपिस्टेमोलॉजी का रैशनलिज्म की तरफ टिल्ट हुआ एक पार्ट हो गया। और उसमें अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं इस पर डिस्कस कर पाऊंगी, क्योंकि लॉजिक इज ऑल साइंस एंड आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड आर्ग्यूमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट।
दैट इज डिडक्टिव आर्गुमेंट एंड इंडक्टिव आर्गुमेंट। ये आप देखते होंगे जब आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो या जब सर्वे का रिजल्ट आप निकालते हो तब आप उसको देखते हो। तो ये लॉजिक या जब आपके फैलिसीज होती हैं, उसमें तर्क दोष होते हैं, उनको कंट्राडिक्शंस को आप रिमूव करना चाहते हो तो आपको लॉजिक की जरूरत पड़ती है। आप प्री सपोजिशंस को चेक करना चाहते हो तो लॉजिक की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एपिस्टेमोलॉजी की पार्ट है। और जब आप कोई भी रिसर्च करते हो तो उसमें जो भी आप थियरीज डिक्लेयर करते हो कि इस थियरी पे, इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू, इस मैथोडोलॉजी के थ्रू मैं इसमें प्रोसीड करूंगा, तो उसके पीछे आप एक लॉजिक देते हो, एक आर्ग्यूमेंट देते हो। उस आर्ग्यूमेंट के बिना आपका मैथोडोलॉजी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये तो कुछ चीजें थी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। एथिक्स पे चूंकि हमारी बहुत बातचीत हो चुकी है, इसलिए मैं आज एथिक्स वाले पोर्शन पे बात नहीं करूंगी। सिर्फ ये कह के मैं छोड़ दूंगी कि जब भी इस तरह के नॉलेज की या एपिस्टेमोलॉजी की बात होती है तो इसके साथ वाई का प्रश्न भी जुड़ा होता है, और वो वाई जो है वो एथिकल कंसर्न की तरफ हमें निर्देशित करता है, जिस पे रिसर्च एथिक्स पे हम काफी बातचीत कर चुके हैं पहले वाले व्याख्यान में। तो अब दूसरी चीज पे जो मैं आती हूँ कि फिलॉसफी और रिसर्च दोनों का एक मीटिंग ग्राउंड क्या होता है या डायरेक्टिंग ग्राउंड क्या होता है। तो इसमें 4-5 डायमेंशन है। जैसे एक नॉलेज है, फिलॉसफी भी नॉलेज पे फोकस है, रिसर्च भी नॉलेज पे फोकस है। इन्वेस्टिगेशन जो है फिलॉसफी भी फोकस है, रिसर्च भी फोकस है। रियलिटी का इवेल्युएशन या सिद्धांतों का इवेल्युएशन जो है वो फिलॉसफी में भी किया जाता है और रिसर्च में भी किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका इंटरप्रिटेशन फिलॉसफी में भी किया जाता है, रिसर्च में भी किया जाता है। जो कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है या थियरीज हैं उनके बीच में जो डायलॉग और डिबेट है वो फिलॉसफी में भी किया जाता है, रिसर्च में भी किया जाता है। जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी जो है फिलॉसफी में भी किया जाता है और रिसर्च में भी किया जाता है। और इसमें जो कुछ कुछ मेथड्स हैं, जैसे प्लेटो के मेथड्स हैं, डायलॉग का मेथड और डेकार्ट का मेथड है जो मैथमेटिकल मेथड के नाम से देता है, और डेविड ह्यूम है जो एम्पेरिकल मेथड देता है। जॉन डीवी आप लोगों ने एजुकेशन में नाम सुना होगा, वो प्रैग्मेटिक मेथड देते हैं। हुसरल जो देते हैं वो फेनोमेनोलॉजी का देते हैं। ये सारे के सारे रिसर्च मेथड हैं जिन पे अलग अलग से एक एक लेक्चर की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी के पार्ट के रूप में मैं इनको रख रही हूं। अब एक छोटा सा प्रश्न ये भी उठता है कि हम लोगों ने जितनी भी बात की उतनी बात हमने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ज्यादातर की, सिवाय अगर डेफिनेशन को हम छोड़ देते। तो क्या इंडियन पर्सपेक्टिव में भी इस तरह का कुछ मैकेनिज्म है जिसको हम रिसर्च से जोड़ सकते हैं? रिसर्च एथिक्स में मैंने आपको बताया था कि वेदांत दर्शन में श्रवण मनन निधिध्यासन का कॉन्सेप्ट है। ये एक रिसर्च का जो ओरिएंटेशन, जो एटीट्यूड, जो डिटर्मिनेशन है उससे रिलेटेड है, जो कि आपके एपिस्टेमिक पार्ट में आता है, एपिस्टेमोलॉजी में आता है। कोई भी ज्ञान की अवधारणा जब आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको प्रोवाइडेड नॉलेज है, सुनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कानों से सुन रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ देख भी सकते हैं, किसी से सुझाव भी ले सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं। उसके बाद आप उस पर विचार करेंगे कि ये कितना मेरे लिए सुटेबल है, कितना सुटेबल नहीं है मेरे रिसर्च के हिसाब से। और ये सोचने के बाद फिर आप उसको पूरे कमिटमेंट के साथ यूज करेंगे। जब आप उसको अपने रिसर्च में यूज करेंगे तो आपको फिर 4 स्टेप जो है साधन चतुष्टय वो भी वेदांत का ही है, कि उसमें आपके लिए क्या लंबे टाइम के लिए यूजफुल है और क्या इमीडिएट थोड़ा सा रिजल्ट दे करके निकल सकता है, क्या नित्य रिजल्ट दे सकता है, क्या अनित्य रिजल्ट देगा। तीसरा, जो रिजल्ट दे रहा है उसमें कहीं मेरा कोई गलत इंटेंशन तो इन्वॉल्व नहीं है। ये इंट्रोस्पेक्शन की तरफ आपको ले जाएगा, जो रिसर्च में बहुत जरूरी है। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जनरल जो प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे जल्दी से जल्दी किसी तरीके से रिसर्च खत्म हो जाए, शॉर्टकट से खत्म हो जाए, इनसे वो ले लें, उनसे वो ले लें और किसी तरीके से ये डिग्री मुझे मालूम हो जाए,
इस प्रवृत्ति से बचना है और नॉलेज का जो बैरियर है, जो बंधन है, उससे तोड़ करके एक नए नॉलेज को, एक नए ज्ञान की प्रक्रिया में हमें एंटर करना है। इसलिए उसको मुमुक्षुत्व की संज्ञा दी गई है। और जितना, जैसे मैंने आपको रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की बात की, वो सब बहुत साइंटिफिक तरीके से हमारे भारतीय ग्रंथों में भी विवेचित किए गए हैं। जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी सिर्फ कह के छोड़ देता है कि आपका परसेप्शन एक नॉलेज का सोर्स है, लेकिन अगर इंडियन फिलॉसफी में आइए तो परसेप्शन को वो 3 स्टेजेस में डिफाइन करता है। एक निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, सविकल्प प्रत्यक्ष होता है और प्रतिभिज्ञा होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को बहुत दूर से देख रहे हैं और उसके प्रॉस एंड कॉन्स को, उसके अंग प्रत्यंग को पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि यहाँ पे कुछ है। सिर्फ इतना कहने से रिसर्च में काम नहीं चलेगा। उसके बाद आप उसको प्रॉस एंड कॉन्स के थ्रू जब जानते हैं तो उसको हम कहते हैं सविकल्प प्रत्यक्ष। उसके हर अंग प्रत्यंग को हम जानते हैं। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिसको हम पहले से जानते होते हैं, लेकिन हमारे मेमोरी में पड़ा हुआ है, जब वो सामने आता है तो हमें ये लगता है कि ये तो हम पहले से जानते हैं। और इसका बहुत एक सुंदर उदाहरण है, मैं नहीं जानती हूं कि आप लोगों में से कितने लोग संस्कृत लिटरेचर के हैं। एक शिशुपाल बद्ध नाम का ग्रंथ है। उसमें एक प्रसंग आया है कि नारद जी जो है वो आसमान से उतर हैं। तो जब वो बहुत ऊपर है तो एक ज्योति पुंज के रूप में, तो देखने वाले को ये लगता है कि कुछ है वहां से जो नीचे आ रहा है। थोड़े नजदीक आए तो उनके हाथ पैर सिर वगैरह दिखे, तो उनको लगा कि ये तो मनुष्य है। जब बिल्कुल पास आए तो नारद के रूप में उनको एक पहचान लिया कि ये तो नारद जी। तो इस तरीके से देखिए, जब हम रिसर्चेस करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें वेग सी लगती हैं, लेकिन हमारे सामने है। कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं जो हमें स्पष्ट दिखती हैं कि इसमें ये चीज है, और कुछ चीजें ऐसी कि अरे ये वहां भी था और यहां भी। तो ये प्रत्यक्ष के इतने विस्तृत डायमेंशन जो है वो फिलॉसफी में मिलता है। इसी तरीके से एक दूसरा प्रमाण है, जैसे जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं या कोई बोलता है उसको सुनते हैं, जैसे श्रवण की बात की थी, तो शब्द की बात आई। शब्द में क्या होता है कि कुछ स्पष्ट होते हैं, कुछ अस्पष्ट होते हैं, कुछ के अर्थ हमें क्लियर होते हैं, कुछ के अर्थ हमें क्लियर नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक विधिवत विवेचना न्याय दर्शन में दी गई है, वो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। समय नहीं है, अदरवाइज उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे इन्फरेंस की बात की हमने लॉजिक में, अनुमान प्रमाण भी है, उसमें व्याप्तियों के दोष भी है, जितने फैलेसीज भी हैं वो भी है भारतीय दर्शन में। उपमान है जो कहीं पाश्चात्य दर्शन में नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सीन और अनसीन रियलिटी के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए अर्थापत्ति जैसे प्रमाण हमारे पास है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दूं कि ये शास्त्रीय उदाहरण है कि देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता, लेकिन देवदत्त स्वस्थ है। इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ कि वो रात में खाना खाता है, लेकिन कहीं पे ये इन्फ्रेंस में नहीं आ सकता। इसी तरीके से कुछ इंप्लीकेशंस जो हैं रिसर्चेज में भी निकाली जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले थी और अब नहीं है। जैसे हिस्टोरिकल जितने रिसर्चेज होते हैं वो अनुपलब्धि प्रमाण पे आधारित होते हैं। इनको जानने के लिए एक जितने स्पेकुलेटिव रिसर्चेज हैं वो अंतर्वीक्षण पे, ह्यूमन इंटेंशन है, ह्यूमन एक्शन का डिसीजन है, वो इंट्रोस्पेक्शन से आता है। और कुछ चीजें जो होती है क्लियर कट इंसाइट मिलती है, वो इंट्यूशन से आता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत ज्यादा है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा उनको जानने और समझ करके रिसर्च में यूज करने की जरूरत है, प्रयोग करने की जरूरत है। तो ये आज का मेरा प्रेजेंटेशन रहा। और आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न